Now it's time for next program. In the heart's attic lie treasures of inner childhood, where innocence and wonder dwell. With this beautiful line, I would like to invite a student of Standard 11th A and 10th for a drama based on the poem Childhood, जिसका खिताब है बचपन एक मीठी याद एक सुनहरा सफ़र. आइए देखते हैं. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respected chief guest, honorable dignitaries on the dais, esteemed parents, respected principal, teachers, and dear schoolmate. This is Zoha Sufyan, a student of 11th standard. Today, I stand before you to present a drama based on a poem Childhood, written by Marcus Nathan, जिसे हम यह खिताब देना चाहेंगे बचपन एक मीठी याद एक सुनहरा सफ़र. The poem Childhood focuses on the theme of loss of innocence. The poet wonders when and where he lost his childhood. In this quest to find the exact moment as he grew up, Marcus Nathan highlights the fact that he has lost in the people around him even as he gained rational individuality. He has seen people and witnessed them preaching and giving lectures on certain topics, but they themselves do not act accordingly in their lives. As adults, our actions should match our words and they should reflect in our own personality. As mature individuals, we should encourage our children to follow the right path, and for that, we should do the same so that we can set examples for them and do not misguide them. After childhood, adolescence is usually a confusing time for a child who is unable to cope up with various changes in his/her personality. He becomes a young adult. People neither wants to call him a child nor an adult. Finally, he comes to a conclusion that his childhood has gone to some forgotten place and his childhood days have now become a memory. Now, let's delve into the beautiful poem Childhood. That's how it starts. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography, and therefore could not be? Was that the day? When did my childhood go? Was it when I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? When did my childhood go? Was it when I found that my mind was really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that the day? Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. फर्स्ट स्टैंजा में पोइट हमें ये बता रहे हैं कि जब हम बड़े होते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हमें बड़े जो कहानियाँ सुनाते थे जिसमें वो जन्नत और जहन्नुम का जिक्र करते थे वो एक्चुअली में इस दुनिया में है ही नहीं, बल्कि इस दुनिया के बाद हमारे अमाल तय करते हैं कि हम कहाँ जाएंगे. वो दोनों भी किसी भी वर्ल्ड मैप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. तो अब to present the first stanza and second stanza of the poem, I would like to call on stage Zainab Sufyan and Sania Khan. Have you ever thought what childhood really means? I think it's a journey, not a destination. We are always growing and learning. Exactly. It's a time of discovery and wonder. Do you remember in our childhood how our grandparents used to tell us about hell and heaven, and we just believed in their stories? Yes, and now we have grown up. We know that they do not exist in the physical world. We just have to realize the difference between reality and fantasy. It was a part of our childhood. Now we are growing older, and इस बीच पता ही नहीं चला कि बचपन कब खत्म हो गया. Yes, you are right. Have you ever noticed how we have changed since we were kids? We used to be so innocent and carefree. Yes, I have. We used to be so pure and naive. Absolutely. And now that we have gained more knowledge, we have lost some of that innocence. Yes, I mean, have you seen the news lately? It's all about crime and corruption. Yeah, it's scary. It's like our eyes open to the harsh realities of the world. Childhood phase जैसे जैसे ख़त्म होता है तब हम बहुत सी चीज़ों को अलग नज़रिए से देखते हैं. जैसे अब एज अ ग्रोन अप
we realized the double-faced nature of humans. बात तो तुम्हारी सही है, कुछ लोग अपनी कही हुई बातों पर अमल नहीं करते, वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं. We can say that their action do not match their words. Thank you. दूसरे सीन में पोइट हमें ये बता रहे हैं कि जब हम बड़े होते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हमसे बड़े हमें जो कुछ भी बातें बताते हैं और करने को कहते हैं वो खुद कभी कभी उस पर अमल नहीं कर पाते हैं. जैसे कि यहाँ एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से वक्त पर नमाज अदा करने को कहती हैं, लेकिन वो खुद इस नेक अमल को अंजाम देने में ताख़ीर करती हैं. हमसे बड़े अपने अमाल से हमारे लिए मिसाल कायम करें तो हमें ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने का हौसला मिलेगा और हम ज़िंदगी में एक कदम और कामयाबी की तरफ आगे बढ़ाएंगे. तो अब इस एक्ट को प्रेजेंट करने के लिए आ रही हैं ज़ैनब खान एंड अफीफ़ा शाह आलम. ये लड़की अभी तक फोन ही चला रही है, नमाज का वक्त निकला जा रहा है. अभी तक तुम फोन चला रही हो, नमाज का वक्त निकला जा रहा है. क्या तुमको अल्लाह ताला का खौफ नहीं है? मैदान हश्र में ये फोन तुम्हारा साथ नहीं देगा, नमाज तुम्हारा साथ देगी. चलो जल्दी जाओ, नमाज पढ़ो. हाँ ठीक है, जा रही हूँ. यही अभी तो लिए थे. वैसे अभी आधा घंटा है, थोड़ा मैं भी स्क्रॉल कर लेती हूँ और सबकी स्टोरी देख लेती हूँ, फिर जाती हूँ नमाज पढ़ने. ऐसा ही कुछ सियासत की दुनिया में भी देखा जाता है जहां हम लोगों की डबल फेस पर्सनालिटी देखते हैं. तो अब इस एक्ट को प्रेजेंट करने के लिए आ रही हैं ज़ारा अयूब, सारा बुलजैश एंड रमशा अयाज. चलो इलेक्शन तो जीत गए, मुंह मीठा करो. चिल्लाओ. बैठ. अरे भाई साहब, इस इलेक्शन ने तो बिल्कुल थका ही दिया, कड़ी धूप में भाग दौड़. हाँ, अब 5 साल आराम करेंगे. क्या बात है भाई साहब, मानना पड़ेगा आपके कुछ रूप इलेक्शन के पहले और कुछ रूप इलेक्शन के बाद. अरे भाई बेवकूफ, जनता का भरोसा जीतने के लिए इतना तो करना ही पड़ता है ना, वरना ये जनता वोट कहाँ देगी. बात तो सही है. साहब हमें बचा लीजिए, हम पर बड़ी मुसीबत आ पड़ी है. आपने वादा किया था वक्त आने पर आप हमारा साथ देंगे, हमारी मदद करेंगे. साहब हमारी मदद कीजिए, हमारी सारी फसल जलकर बर्बाद हो गई है. हाँ ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा. सिक्योरिटी. पर साहब आपने तो वादा किया था ना. साहब आपने. ठीक है. जाने कहाँ से आ जाते हैं. अब इनसे हमारा क्या रिश्ता, हमारा तो काम हो चुका है. अब 5 साल हमारे हैं, बेफिक्र रहिए. Now to present the third and fourth stanza of the poem, I would like to call on stage Zikra Rahman and Aruma Khan. Now that we are in our teen years, we stand here with the realization that we can make our own decision and choose what is right or wrong for us. Yes, indeed, and our thoughts should be our own, original, but not influenced by others at all. We have an individualistic personality and we know what is good or bad for us. Absolutely. Our parents are our elder and we should express ourselves in front of them clearly and politely. We should try to make them understand our point of view in a very smooth, comprehensive and polite way. That's right. We should seek their advice and suggestion as they have much more experience than us. And we need to understand that they will take time to sink in our ideas, thoughts, but that's okay. Yes, we have to come to a middle ground and make things happen for better results. Yes, of course. Communication at the right time and in a right way is the key for best possible result to be seen. अब जो एक्ट होने जा रहा है उससे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो इस बात से वाकिफ़ हो जाते हैं कि उनमें इतनी सलाहियत है कि वो अपनी बात को आपके सामने पेश कर सकते हैं. उनकी अपनी ज़ाती तासुरात हैं, उनकी अपनी ज़ाती शख्सियत है, वो अपने फ़ैसले खुद ले सकते हैं और अपने शख्सियत तो खुद निखार सकते हैं. वो अब इतने काबिल हैं कि उन्हें मालूम है उनकी खूबियों और सलाहियतों के हिसाब से उन्हें कौन से रास्ते पे जाना है और इन सब में हमें उनका साथ देना चाहिए. तो अब इस एक्ट को प्रेजेंट करने के लिए आ रही हैं नबा शेख, उमामा शेख, अफीफ़ा उमर एंड ज़ारा खान. अरे नबा की मम्मी कहाँ हो? अरे जी आप आई हैं? और बहन जी क्या हाल है? ठीक ठाक, आप बताइए. अरे वो बच्चों के कल रिजल्ट्स आ गए हैं ना,
वैसे नबा के कितने परसेंट आए? नबा के तो 90% आए हैं। वैसे कलीम के कितने परसेंट? कलीम के भी तो 85% आए हैं और वो साइंस ले रहा है। वैसे नबा क्या ले रही है? उम्मीद तो है कि वो साइंस ही लेगी, अब आगे उसकी मर्जी। हाँ जाहिर सी बात है, उसके 90% आए हैं तो उसको साइंस ही लेना चाहिए। हाँ अब आगे उसकी चॉइस। अच्छा चलिए मैं चलती हूँ। चलिए ठीक है। अब्बू अम्मी आपको पता है मेरे 90% बनी है। हाँ बेटा माशाल्लाह, हमें बहुत खुशी हुई सुन के। मैं तुम्हारे एडमिशन की बात कर लिया साइंस स्ट्रीम के लिए, इंशाल्लाह कल हो जाएगा। लेकिन अब्बू मुझे तो कॉमर्स लेनी थी। क्या? लेकिन तुम्हें कॉमर्स क्यों लेना है? आप उसके ऊपर प्रेशर क्यों बना रहे हैं? हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, उसकी अपनी भी तो मर्जी है। हाँ लेकिन मैं ये बोल रहा था, फैसल भाई की बेटी का तो 80% आया है, वो साइंस ली है, और हमारी बेटी का तो माशाल्लाह से 90% आया है। अब्बू फैसल अंकल की बेटी का एम डॉक्टर है, जबकि मैं हमेशा से सीए बनना चाहती हूँ और सीए बनने के लिए मुझे कॉमर्स लेनी ही पड़ेगी। अब्बू प्लीज़ मेरी बात समझिए, साइंस लेकर शायद मैं उतना बेहतर ना कर सकूँ जितना कॉमर्स लेकर कर सकूँगी। अब लग रहा है हमारी बेटी बड़ी हो गई है। मुझे यकीन है बेटा तुम जो भी करोगी बेहतर करोगी, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। It's sad, isn't it? Childhood is such a fleeting thing. Before we know it, it's gone. Yes, you are right. And unfortunately, it can't be returned or retrieved back. We should appreciate the time as we will never be those kids again. You know, sometimes I feel that my childhood has been lost and my innocence is hidden behind an infant's face. Yes, but that's what makes it so precious. We have to hold on to those memories and cherish them. Do you know what's the worst part of childhood? What is it? The worst part of childhood is that it ends without any warning. Yes, that's obvious. Now, at the last, I would like to call on stage Fahmida Abdullah. हेलो और दोस्त, क्या हाल है? खैरियत तो है? आजकल स्कूल नहीं आ रही हो, कॉल भी नहीं कर रही हो, क्या बात है? हाँ? नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मुझसे अब नहीं हो रहा है। मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सोसाइटी, स्टडी, फैमिली इश्यूज, मुझसे अब नहीं हो रहा है। मैं भागते भागते थक गई हूँ। जब मैं छोटी थी तो जल्दी से बड़ी होना चाहती थी। अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे ज़िंदगी बहुत मुश्किल लग रही है। मुझे फिर से अपना बचपन जीना है, उन सुनहरे पलों में खुद को हंसते मुस्कुराते और ज़िंदगी को खुल के जीते देखना है। वो बचपन के पल जो फिक्र बेहद यादगार और खुशगवार थे। अफसोस कि अब वो वापस नहीं आएगा, वो अब कहीं खो गया है। अब हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और उन्हें निभाना होगा, और ये हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। इस एक्ट के ज़रिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं और हमारा बचपन कहीं पीछे छूट जाता है तो वो महज एक याद बनकर रह जाता है, जिसे हम सिर्फ याद कर सकते हैं, दोबारा जी नहीं सकते। अब ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी है और हमें ज़िम्मेदारियाँ निभानी है, और इन्हीं ज़िम्मेदारियों को निभाकर हम कामयाबी की राह पर चल सकते हैं और ख़ुद तो कामयाब बना सकते हैं और अपने माँ बाप का और असज़ाए कराम का सर फ़ख्र से ऊँचा कर सकते हैं। अब हमें अपने बचपन के पलों को पीछे छोड़ देना है। तो अब इसी जज्बात को लफ्ज़ों में पिरोने के लिए आ रही हैं अफ़ज़ा आसिफ एक खूबसूरत नज़्म के साथ हमारी बचपन की यादों को ताज़ा करने। आइए सुनते हैं। एक बचपन का ज़माना था, खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी, दिल तितली का दीवाना था। थक कर आते थे स्कूल से, फिर खेलने भी जाना था। बारिश में कागज़ की कश्ती, हर मौसम ही सुहाना था। हर खेल में साथी थे, हर रिश्ता निभाना था। रोने की वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था। अब नहीं रही वो जिंदगी जैसे बचपन का ज़माना था। वो शरारतें, वो शौकियाँ, मेरे अहद तिफ्ल के कह कहे। वो शरारतें, वो शौकियाँ, मेरे अहद तिफ्ल के कह कहे। कहीं खो गए मेरे रात दिन, इसी बात का तो मलाल है।
क्या तुमसे बताएं उम्र फ़ानी क्या थी, बचपन क्या चीज़ था, जवानी क्या थी। ये गुल की महक थी वो हवा का एक झोंका, ये गुल की महक थी वो हवा एक झोंका, एक मौजे फना थी जिंदगानी क्या थी। Have a big round of applause for their beautiful drama.